السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور آج شامل گفتگو ہوں گے ہماری ادب کی دنیا سے تعلق رکھنے والے معزز دوست جیم سین دھڑکن، عشرت زخمی اور شمیم میاں، اور ان کے ساتھ پچھلے ہفتے سے شامل ہونے والے بیدار اوئی۔ جی ہاں، پہلے تو بے جان اوئی ہوا کرتے تھے، پھر ہم نے کہا کہ بھائی ہمارے ساتھ آئیے، جب سے آ گئے بیدار ہو گئے۔ جنید میاں بہت شکریہ آپ کا، آپ ہیں ہی بہت پیارے۔ بے شک یقین مانیے کہ یوں کہتے ہیں کہ بہار کے آنے سے ہی پھول کھل جاتے ہیں۔ بہار کے آنے سے ہی پھول کھل جاتے ہیں۔ آپ کا چہرہ دیکھ کے اس بات پہ یقین آ جاتا ہے بھائی، کیا کہنے۔ یہ پہلا غالباً آپ نے مصرع کہا تھا، میرا خیال بنا نہیں تو آپ نے اس کو نثر میں تبدیل کر رہا ہے، صحیح؟ واللہ نہیں، ہم نے مصرع نہیں کہا، ہم نے تو آپ کی خوشامد کی ہے۔ کیا ضرورت ہے خوشامد کی؟ بھائی سن رکھا ہے بزرگوں سے کہ گھر میں بیوی کو راضی رکھنا اور پروگرام میں اینکر کو راضی رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا ہے، ہم نے تو آپ سے کچھ کلام سننے کے لیے آپ کو بلایا ہے، خوشامد کے لیے تو نہیں۔ ہم جانتے ہیں میاں، ہم جانتے ہیں کہ آپ بڑے محبت والے ہیں، آپ تو میں یوں کہوں گا کہ ماشاءاللہ ہزاروں میں ایک ہیں۔ اچھا، آپ کو زحمت آج خاص طور پہ اس لیے دی ہے کہ بہار کی آمد ہے، اور بہار کا اور شاعری کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے فلم کا اور فلم سٹار بہار کا چولی دامن کا ساتھ ہو۔ جیسے تازگی کا اور ہمارا چولی دامن کا ساتھ۔ اب آپ نے ادھر ادھر کی ہانکتے جانا ہے یا کوئی کلام بھی سنائیں گے ہمیں؟ جنید میاں یہ صرف ہانکتے ہی نہیں، ہنک بھی لیتے ہیں۔ ہنک؟ ہاں جی، ہنک کے دکھائیے۔ ذرا دور بیٹھیے گا، دلتی نہ مار دیجیے گا۔ 2-3 دفعہ سمجھایا بھی ہے شمیم میاں، جہاں تازگی، پھول، بہار، فرحت کا ذکر ہو وہاں چپ ساتھ لیا کیجیے۔ اصل میں دھڑکن میاں، ہمارے ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بہار آتے ہی شاعروں میں ایک ولولہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جنید میاں، یہ پورب سے اٹھنے والی ہوائیں شاعروں کو اس قدر متاثر کرتی ہیں کہ واللہ مت پوچھئے۔ یقین مانیے جب بہار میں ہوا چلتی ہے تو بیدار اوئی صاحب اس طرح اڑنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے مائی پونڈی۔ اچھا ہے، واہ، سمجھتے ہیں مائی پونڈی، ادب شناس ہے، ورنہ آج کل کی نسل تو ڈنڈا، کونڈی اور مائی پونڈی کو جانتے ہی نہیں۔ دھڑکن میاں، آپ کی بلائیں لے لوں۔ ادب شناس بھی ہوں اور مردم شناس بھی ہوں میں، آپ نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، اس لیے مجھے سمجھ آ گئی۔ کیا کہنے۔ مائی پونڈی، صبح ہماری ٹوٹ گئی ایک لوتی چائے دانے کی ڈونڈی۔ ارے شمیم میاں، یہ شاعری نہیں غربت ہے حضور۔ شکر کرو تمہیں کہہ رہے ہیں مائی پونڈی، ورنہ تم تو ہو تیلے کی سونڈی۔ دھڑکن میاں، گفتگو کچھ زیادہ ہی ادبی نہیں ہوتی جا رہی؟ بس کیا بتائیں جنید میاں، شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ سوچا یہ تھا کہ دوستوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں، کچھ سخن مر ہو جائیں گے، مگر ثابت یہ ہوا کہ خانہ بدوشوں کے بچے اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتے۔ ادب تو ان کے اندر اس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے کہ بارش ہوتے ہی گلیوں میں، محلوں میں کیچڑ ہونے کا انتظار شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہی 4 سو کیچڑ پھیل جائے تو اس میں اس طرح پلسیٹیاں لینی شروع ہو جاتے ہیں کہ والدین کے لیے پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے ہمارا ہی بچہ ہے یا کسی جانور کا۔ ایسا نہ کہ یہ دھڑکن میاں، بارش کی 4 بوندیں پڑتے ہی ہمارے اندر سے ادب پھوٹنے لگتا ہے۔ کالیاں اٹاں کالے روڈ، می برسا دے زور و زور، کالیاں اٹاں کالے روڈ، می برسا دے زور و زور۔ آپ شاعری کریں، آپ نے تو فضول بولنا شروع کر دیا۔ یوں نہ کہیے جنید میاں، شاعری کر رہے ہیں اور پلستر کر رہے ہیں۔
यही कलाम सुना के शमीम मियाँ ने और जख्मी मियाँ ने एक दफा मुशायरा लूट लिया। तो भाई जो ही इन्होंने ये शुरू की अपनी नज़म, कालियां इट्टां काले रोड, बारिश तेज हो गई, खुले आसमान तले महफिल सजी हुई थी, लोग जूते छोड़ के भाग गए। इन्होंने सारे जूते इकट्ठे करके चादर में बांधे और निकल लिए। माशाल्लाह। घर पहुंचे तो भाभी ने पूछा ये चादर में क्या है, तो मौसूफ बोले कि हमें दाद इकट्ठी हुई है। और सारी जूतियां शमीम मियाँ के नाप की, हमारे हिस्से में स्लीपर आया। अच्छा बस करे हुजूर, कोई शेर सुनाए बाहर की मुनासबत से। भाई बहार तो उस वक्त महसूस होती है जब जेब में भी बहार हो। आजकल तो जो हालात जा रहे हैं शुअरा के, गर्मियों का इंतजार शुरू हो गया है, उस मुनासबत से शेर अर्ज किया है। एसी लगवा दो गर्मी में, वो जिद पे अड़ गई। एसी लगवा दो गर्मी में, वो जिद पे अड़ गई। फिर बिल का सोच के मुझे दंदल सी पड़ गई। ऐ मौसमे गुल जरा ये तो बता, ऐ मौसमे गुल जरा ये तो बता, तुम्हें तार भी कोई नहीं लगी तो जलते कैसे हो? फिर बिल का सोच के मुझे दंदल सी पड़ गई। खींची जो फोटो उसकी तो बोला ये कैमरा बंदा सड़ा हुआ है या फिर फोटो सड़ गई। जब बहार आई तो सहरा की तरफ चल निकला, मुकद्दर ऐसे पाए कि खरबूजा भी फीका निकला। पूछे तबीब हमसे फिर ये बताएंगे, गोरे थे पहले ये तो कक्की कीड़ी लड़ गई। क्या रसनुमा तबीयत पाई है। जिन्हें सब समझ आई नहीं कि ने पूछे आप शुरू तो ये हो जाए या हुण बेड़ा गर्क होया? मैं तो दसिया भी नहीं ये कक्की कीड़ी लड़ी। हाय सुनी तशरीह आपने। धड़कन मियाँ खुदा के लिए तो खूबसूरत सा शेर सुना दें। लीजिए फिर, आपने सुन रखा होगा लाजमन, मगर जरा माहौल को अच्छा करने के लिए सुनाए देते हैं। क्या खूब। आंदली मिल के करे आहोजारियां, अरे वाह। तू हाय गुल पुकार मैं कहूं कि हाय दिल। इसकी तशरीह तो समझते होंगे। ये बता दीजिए आप। मुख्तसरन ये सारियां मनूस गल्लां ने। तुम भी यहाँ मैं भी यहाँ, रोशनी दोनों में कहाँ। तुम भी यहाँ मैं भी यहाँ, तो फिर घर कौन है? खुदा का नाम ले धड़कन साहब, अब तो आपकी रुखसती का वक्त आ गया, कोई तो अच्छा शेर सुना दे। लो भाई, रुखसती के मौके पर साडा चिड़िया दा चंबावे बाबले ऐसा उड़ जाना, साडी लंबी उड़ारी में बाबले ऐसा उड़ जाना। यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जुनैद, ये जो आजकल ब्यूटी पार्लर हर गली में हर कोचे में बन गए हुए हैं, वो ऐसी जिद्दत इख्तियार कर गए हैं कि बिल्कुल ही शक्ल ही बदल कर रख देते हैं खतून की। मुझे इससे कोई इख्तलाफ नहीं, खवातीन को जाहिर है उनको अपनी ब्यूटी का ख्याल होता है, बात के बात किया रखना चाहिए। मैं खुल के ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम तुम्हारी आवाज में दबदबा कितना होता है जब तुम घरेलू अमूर पे बात कर रहे होते हो। तुम्हारी आवाज में वो जबरदस्त यार। यार मैं मजाक ना शुरू कर दो फयूली। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ब्याह वाले दिन जो होता है दुल्हन का मेकअप, यार लाड़े के साथ ऐसी ही आती भी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने पहली बारी तो सही वहां जो है, मेरा मतलब है कि फोटो कुछ और होती है, लड़की कुछ और होती है, ब्याह वाले दिन उसके बाद कुछ और होती है। अजीब ही वो बेचारा बंदा जो है वो धोखे में ही बेचारा लगा फिरता है। और हमारी तालीमात में तो ये है कि अगर कोई चीज आप देने लगे हैं या कोई चीज आप किसी दूसरे को हैंड ओवर कर रहे हैं तो उसमें धोखा नहीं होना चाहिए। सही। तो मैं तो गुजारिश ही कर रहा हूँ ऐसे वो
शादी हुई है हमारे एक रिलेटिव गांव में, अच्छा। तो वो लड़की मेकअप किया हुआ था, मैं भी गया हूँ शादी पे, तो मैंने उसके बड़ी मुबारक मुबारक दी, भतीजा ही लगता है अपना। मैंने कहा यार बड़ी बड़ी मुबारक हो पुत्र, तुम्हारी बेगम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बच्ची है, और गांव में देखो तुम इतनी मॉडर्न और इतनी प्यारी बच्ची जो है वो आ गई है तुम्हारे पास, तो बड़ी खिदमत करना इसकी। और 3 दिन बाद वो बेचारा मुझे फोन करके लड़ना ही शुरू हो गया, कहता चाचा जी बढ़िया मैनू दादा शादा दे के गए सब। मैं कहा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने इतनी खूबसूरत बीवी दे दी है। कहता चाचा जी प्लीज खामोश, की तुहानू मैं दसा बस यही समझो कि आईफोन 7 के डब्बे चो 3310 निकला। वैसे तो अब ये बात हम इसलिए नहीं कर सकते कि लड़के भी अब बढ़िया तैयारियां शेयर पकड़ के बड़े मेकअप मुकअप करके तो जाते हैं। चलो औरत का तो बनता है ना अपने खामद के लिए बनाओ सिंगार करे। अब लड़के कितने बुरे, बंदे कितने बुरे लगते हैं, वो रंधे फराए होते हैं, मुंह छिलाए होते हैं, पता नहीं की फेशियल कराए होते हैं। अगर औरत का बनता है कि वो अपने खामद को अच्छी लगे, तो खामद का भी बनता है औरत को अच्छा अपने बीवी को अच्छा। एक लड़ाइयां झगड़ी गौरी साहब इसलिए हो रहे हैं, ये होते जो हो जाते हैं बंदे शादी से पहले टका टका के परफ्यूम लगा लगा के प्यारे बन बन के पैंट कोट पहन पहन के सियालकोट जाते हैं, और जब शादी हो जाए तो वही लाड़ा बेचारा 2.5-3 कनाल दी कोठी च बैठ के ढिड खुरकन दिया। यार जी तू यही काम करना सी तो फिर 3 मरले का मकान बनाना। ये होता है बस। क्या खबर है आज पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि हुक्मरान ऐसे काम करते हैं जिनसे कमीशन मिले। चलो दूसरी खबर क्या है जी? इस पर तो तबसरा करें। हो गया तबसरा, जुनैद ने कर दिया ना, इत्थे रख हुण उत्थे भावें चुक के ते किधरे होर रख लो। चलो यार जरदारी साहब के इस बयान पर ना तबसरा करो, कम से कम मोहम्मद आसिफ क्रिकेटर जो है अपने, उनके इस बयान पर तो कर दो कि जब तक क्रिकेट को सट्टे से पाक नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। यार तू भी रख देता यार, उन्होंने पढ़े लिखे लोगों ने रख दिया यार मेरा क्रिकेट के साथ को इंटरेस्ट नहीं है। मुझे क्या मोहम्मद आसिफ ने क्या कहा है, मुझे तो इस बयान पे बड़ा सख्त मान से दुख हो रहा है, और मैं तबसरा करना चाहता हूँ कि फिल्म स्टार नरगस ने कहा है कि फांसी बहुत फैल गई है। चलो अब देखो यार सारे बयानों को एक तरफ रखो, जमशेद दस्ती के इस बयान पर तो कुछ ख्याल आराई कर दो अपनी। उन्होंने कहा है कि जब तक तालीम याफ्ता लोग सियासत में आगे नहीं आएंगे मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ओहो इतने रखो तो उतने भी रखो। आपस में आप झूठ झूठ बोले, मैं जरा सुहेब मरगूब साहब से मिलने जा। सर बात तो सिर्फ पहली खबर है सर। नहीं जी नहीं बस वो सर बात तो बस यार बस बड़ी हो गई। I am very fed up. This is not to equal to this my तबसरा। सर गुस्सा खबर का हम पे उतार रहे हैं आप, बैठे। ओके यार वैसे मैं ये समझता हूँ जुनैद कि ये जो जरदारी साहब ने कहा है कि हुक्मरान ऐसे काम करते हैं जिसमें कमीशन मिले, उनको ये नहीं याद रहा कि वो भी हुक्मरान रह चुके हैं, उनकी कौन सी बाऊ बैंड की दुकान है। क्या जरदारी साहब हुक्मरान रहे लेकिन कमीशन तो नहीं लेते थे? अरे बिल्कुल ठीक है, हंसने की जरूरत नहीं, इसकी गवाही कई मर्तबा जुल्फकार मिर्जा साहब भी दे चुके हैं। और नेता है कि एक बात याद आ गई है, उसका इससे तो खैर का तल्लक नहीं है। लो जी पिंड वाले ना जी कहीं झगड़ा हो गया, डांगा सोटे पकड़ के चल पड़े, वड्डा ताया मेरा देख के कहता हूँ किधर चले हो? अच्छा उन्होंने कहा जनाबे आली हमारा हो गया झगड़ा एक बंदे के साथ, अच्छा। तो उसके पास जा रहे हैं, छड़ दे पीछे हट जाता है, क्या ठहर भी जाओ, झगड़ा हो गया तो मेरे बगैर ही टुर पे हो, जेड़ा सब तो बहुता लड़दा है ओनू छड़ ही चले हो। तायड़ भी डंडा पकड़ा और सबसे अगे अगे चलना शुरू। वाह वाह बड़े ताया जी अगे गए सारे। हाँ जी तो फिर हौली हौली गए होंगे सारे। यार ताया मेरा टर्बो था, इसीलिए बाकी तायों से 2.25 लाख महंगा था वड्डा ताया। नहीं एडा महंगा नहीं सी, टायर कस गए। लो जनाब ताया अगे अगे सारा पिंड मगर मगर, जहां पे जाके बताया लोगों ने कि जी ए घर जिन्होंने झगड़ा है। अच्छा ताए ने खड़काया जोर जोर से दरवाजा, बुआ खुले आते अंदरों पिंड दा सब तो डाडा बदमाश निकला। आंदा हाँ किधर आए हो? ताया उस बदमाश को कहता लो जी पहलवान जी
ਇਹ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਫੜ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ क्या है अगली खबर जी सुने, खलीजी एयरलाइन से मुकाबले के लिए हुकूमती ताउन दरकार है PIA। नहीं क्या कहा PIA ने कि हुकूमत PIA की मदद करे? हाँ जी। अरे तो बिल्कुल ठीक कहा है। ये जो हर बजट में से उनको अरबों रुपया देते हैं PIA को हुकूमत वाले, वो तो ज़कात होती है ना। ज़कात और चीज है, मदद और चीज है। वो कह रहे हैं हमारी मदद करे, हमारे जाई हो गए हुए हैं बुढ़े, तो हुकूमत को चाहिए कि अमीर मुकाम साडे वाले कर देने, साडे जाइयां दे टायर कुट्टे करे बैठ या चौरी निसार इन्होंने दे दियो ताकि जहाज उड़न तो पहले स्क्रीन दे उत्ते वाइपर मार दे। या रेलवे के वजीर साद रफीक PIA के हवाले कर दे, जब जहाज उड़ रहा हो तो पायलट के साथ बैठ के करें और साथ बताएं भी पायलट को कि आगे फाटक खुला हुआ है, एहतियात से जरा। अजीब भी वैसे ये बयान है, मुझे समझ नहीं आ रही। तुम इस बात पे गौर करो कि PIA वाले कह रहे हैं कि हमने खलीजी एयरलाइंस का मुकाबला करना है। जो बिल्कुल ऐसे ही है ना कि सोमालिया की फौज कहे कि हमें इतने $1000 दे दो, हमने अमेरिकी फौज का मुकाबला करना है। यार कहाँ PIA कहाँ खलीजी एयरलाइंस को धागा खौफ करो। जी खबर सुने जरा, वजीर आजम के मशीर अमीर मुकाम का कहना है कि इमरान खान बड़े और परवेज खटक छोटे शेख चिल्ली हैं। खटक साहब के घर गैस लगवाना भी मेरा कारनामा है। किन्होंने कहा? अमीर मुकाम ने? हाँ जी। अभी उनका जिक्र किया ना तो हाजिर हो गए। है को बात करने वाली। परवेज खटक भी पठान, इमरान खान भी पठान, तो उनको शेख बना दिया और साथ उनके चिल्ली लगा दिया। यानी मिर्च तो दोनों को ही मना है। देखो ना जरा, इमरान खान साहब ऐसे ही डाइट पे होते हैं, एक्सरसाइज वाले बंदे हैं, वो भी मिर्च नहीं खाते। और परवेज खटक साहब को मैकेनिक ने मिर्च मना की हुई। मैकेनिक ने, डॉक्टर ने? नहीं डॉक्टर ने नहीं, मैकेनिक, टेक्निकल फॉल्ट है ना। वो मिर्चें ज्यादा खा के अगर हू करे तो उनकी गंढ बज जाती है। खटक साहब को तो शादियों पे जलने वाली मिर्चें भी मना है। हाँ जी, उससे उनकी शक्ल मिलती है। जी खबर सुने, मुस्तफा कमाल की पाक सरजमीन पार्टी कहती है कि आइंदा सिंध और वफाक में हुकूमत हमारी होगी। यार आज किस तरह की खबरें ये बच्चे इकट्ठी कर रही। जरदारी साहब कमीशन के खिलाफ बयान दे रहे हैं, PIA को खलीजी एयरलाइनों से लड़वा रही है और मुस्तफा कमाल को वफाक दे रही है। ये ब्रेक ले लो, तुम्हारी को होस्ट पागल हो गई है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार पिछले दिनों जो खबर एक हमने पढ़ी थी कि ATM का फ्रॉड बहुत ज्यादा शुरू हो गया है। हाँ जी। ये जो पैसे निकालने वाली मशीन है, उसमें यहाँ पाकिस्तान में हमारे मुल्क के अंदर अब ATM बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। सही। मगर उसमें बचने के कुछ तरीके भी तो होने चाहिए। बैंकों को चाहिए कि बताएं कि भाई इस तरह आपका जो कार्ड है वो कोई और इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए बचने के लिए बैंकों को चाहिए कि कोई उन लोगों को अवेयरनेस दे, को एजुकेट करे। तुम बिल्कुल FIA लग रही हो मुझे। FIA ने स्टेट बैंक से यही कहा है। 2 दिन पहले FIA ने स्टेट बैंक से कहा है कि तमाम बैंकों को इंस्ट्रक्शंस जारी की जाएं कि अपनी सिक्योरिटी मेजर्स को बढ़ाएं। ATM जितनी मशीनें लगी हुई हैं ना, इनमें सिक्योरिटी मेजर्स को बढ़ाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा वारदातें हो रही हैं ATM फ्रॉड के। अभी चंद दिन पहले 2 बड़े साइंटिफिक तरीके से ATM के फ्रॉड करने वाले बाशिंदे गिरफ्तार हुए और दोनों चाइनीज हैं। इत्तेफाक की बात है, पाकिस्तान में चूंकि बहरहाल वॉल्यूम अभी छोटा है और इसका इसलिए फ्रॉड का लेवल जो है वो भी कम है अभी दीगर दुनिया की निस्बत। और दूसरी ये भी बात है कि जब वैसे ही उनको पता है, लोगों को पता है कि वैसे ही गन पॉइंट पे ATM के अंदर जाके छीन लेने, तो लंबा चौड़ा फ्रॉड करने की क्या जरूरत है, ये आसान काम है। हाँ। इसलिए अभी, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि लोगों को थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, बैंकों को भी एहतियात करनी चाहिए, अपनी सिक्योरिटी मेजर्स जो हो सकती हैं। नहीं क्या एहतियात क्या करे को, ATM के कान में कह दें कि चोर आया तो उन्हें फाड़ लवी। नहीं देखो मेरी बात सुनो, कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो जिन पर जो यूजर है, आम आदमी जो ATM का इस्तेमाल कर रहा है, वो
काबू पा सकता है, एहतियात बरत सकता है। कुछ चीजें हैं वो सच्ची बात यह है कि उसके कंट्रोल से बाहर है, और जो चीजें जिनमें एहतियात बरती जा सकती है वो तो सीधी सीधी ये है कि कम से कम जब आप एटीएम इस्तेमाल कर रहे हो तो भरपूर कोशिश करें कि आपका जो पिन कोड है वो किसी को ना पता चले। और इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई इसमें शर्मिंदगी वाली बात नहीं है कि आप बाकायदा पूरा हाथ रख के उसके ऊपर पिन कोड अपना दबाएं, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड भी सामने आए हैं कि वो जो बैंकों ने अपनी प्रमोशंस के लिए लीफलेट्स रखे होते हैं ना, साथ बॉक्स सा बना होता है, उसके अंदर छोटा सा सुई के नक्के जितने कैमरे लगे हुए हैं वो आपका रीड कर लेते हैं। अच्छा, अब फ्रॉड ये करते क्या है कि एटीएम के पैड के ऊपर बड़ा ही बारीक सा, बड़ा ही डेलिकेट किस्म का एक और पैड चश्मा कर देते हैं, लाइक दिस। ये इसको पैड समझो, इसके ऊपर एग्जैक्टली इसी तरह का पैड चश्मा कर देते हैं। अब आप बड़े मजे से जाते हैं एटीएम के अंदर, आप अपना पासवर्ड दबाते हैं और वो रिकॉर्ड हो जाता है, आप बाहर तशरीफ ले जाते हैं, फ्रॉडिया हाथ जो है वो अंदर जाते हैं, वो जो है अपना लगाया हुआ पैड है वो उतार लेते हैं और उसे पता चल जाता है कि आपने कौन सा नंबर प्रेस किया था। अच्छा, ये भी याद रखना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि आप एटीएम यहां यूज कर रहे हो तो फ्रॉडिया भी यहीं बैठा होगा। अच्छा। आप यहां कार्ड यूज कर रहे हो, फ्रॉडिया कनाडा में बैठा होगा। सर तो फिर कार्ड में ट्रैकर लगा दें। यार तू कदली पूछ रहे तेरा कितना कार्ड ही नहीं गाजी। इसने तो एक दिन अपना कार्ड एटीएम मशीन में डाला, बीच में पैसों की बजाय बददुआएं निकलनी शुरू हो गई। या तेरा खाना खराब, तेरा बेड़ा तर जाए ना बरादा। थैला कदी कदी इस्तेमाल करदा एटीएम मशीन। अच्छा जी, वो चो पैसे नहीं कढ़ादा। अच्छा, वो च खत पा होंदा। एक दिन कोड भूल गया तो इसने खत नहीं डाला कि कोई पढ़ ना ले। अपना भी तो बताओ ना, मोहल्ले में नई नई मशीन लगी है, वहां जाके कई दिन वीडियो गेम खेलने की कोशिश करता रहा। दूसरी बात यह है कि जरूर जो लोग एटीएम यूज करते हैं वो साथ एसएमएस अलर्ट या ईमेल अलर्ट वो जरूर हासिल करें। इसमें कोई बात नहीं है, उसके कितने चार्जेस होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं, लेकिन वो जरूर हासिल करें। और क्या होता है जी, पता चलता है ना आपने इतने ड्रॉ करवाए हैं, साथ साथ मैसेज आता जाता है ना आपको। और साथ आपको मैसेज आएगा जनाब आपके अकाउंट से 50,000 रुपए निकल गए, आपको पता ही नहीं है, तो आप फौरी तौर पर बैंक को कम से कम इन्फॉर्म तो कर सकते हैं। उसमें से अगर 500 रुपया भी निकलवाए तो उसका भी पता चल जाता है। 500 क्या, 8 आने निकलवाओ वो भी बता देगा। वैसे मैंने शॉपिंग करनी है या टास्क करनी है। अच्छा, एक जो मैं कह रहा हूं ना कि जो फ्रॉड नहीं पकड़े जाते, अभी पाकिस्तान में बिल्कुल इब्तदाई स्टेज पे है एटीएम के फ्रॉड, उसमें बड़ी बड़ी लाजवाब चीजें लोगों ने निकालनी। ऐसे ऐसे फ्रॉडियों ने हरबे इस्तेमाल किए कि बकायदा एक स्किमिंग डिवाइस लगा दी है एटीएम के अंदर, स्किमिंग डिवाइस लगा दी है। स्किमिंग का मतलब है जैसे ना स्किम्ड मिल्क, यानी दूध के ऊपर से मलाई उतार लेना। स्किम मीन किसी भी लिक्विड चीज के ऊपर से असल जो सॉलिड है वो उतार लेना। तो आपके जो आप जब कार्ड एंटर करते हो एटीएम के अंदर तो स्किमिंग डिवाइस है वो उसकी जितनी इंफॉर्मेशन है, डाटा जो है ना वो रीड कर लेता है। अब यही जो आपका चोरी शुदा पासवर्ड है ये फ्रॉडिये किसी हैकर को दे देते हैं, अगला काम हैकर दिखा देता है। जी जी, ये बाबूजी बड़े पढ़े हैं जी। और तुम्हारा क्या ख्याल है, मिस्त्री है कोई? और हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि दुनिया भर में इस वक्त 20 अरब डॉलर से ज्यादा एटीएम के फ्रॉड हो रहे हैं। 20 अरब डॉलर से ज्यादा। चूंकि ये सहूलत बहुत बड़ी है और वर्ल्ड इकोनॉमी का ये बिल्कुल एक बहुत ही मामूली हिस्सा है, इसलिए लोग इसको कहते हैं कि काबिल बर्दाश्त है। अच्छा, मैं हैरान इस बात पे हुआ कि आपने जब कहा है ना कि 20 अरब दे फ्रॉड हो रहा है, तो मैंने भी कहा हाय हाय हाय, तो थैले ने भी कहा ऐसा जैसे 20 अरब में से 18.5 अरब इसका ही था। अच्छा, ये जो तुम अभी कह रहे थे ना कि क्या किया जाना चाहिए, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात का जिक्र करना मैं भूल गया हूं, वो ये है कि आप उस एटीएम का यूज करें जो ज्यादा इस्तेमाल होती है। अच्छा, जो 24 घंटे चलती रहती है, वहां पे जाहिर है कि कोई भी फ्रॉडिया आके उसको इतना लोगों के दरमियान टाइम नहीं मिलेगा कि वो कोई स्किमिंग डिवाइस जो है वो अंदर आके नस्ब कर सके। बहुत अच्छी बात है। मगर जो हमारे मोहल्ले में एटीएम मशीन लगी हुई है वो तो बड़ी बड़ी देर बाद इस्तेमाल होती है। कई दफा उसमें कार्ड डाले ना तो मशीन कह देती है कि पानी में काम भूल गई है, मैं जरा फोन करके पूछ लगा। निकलते तो अंदर से नोट ही है ना, मिट्टी का तेल तो नहीं निकलता ना। ठीक है सर, मेरा मशवरा है कि कार्ड पे तस्वीर होनी चाहिए, जाके कोई आदमी अगर शॉपिंग करने गया है तो उसे पता हो कि ये बंदे का कार्ड। नहीं, ये नहीं। अब दुनिया इस पे स्विच ओवर कर रही है, बल्कि ये जो स्टेट बैंक का
जो इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, स्टेट बैंक शायद कर भी ये दे कि ये जो थंब इंप्रेशन है, बायोमेट्रिक सिस्टम है, ये कर दिया जाए, इससे भी बहुत बचत हो जाएगी। आप जाते हो, आप अपना अंगूठा सबत करते हो, तो फिर आते इससे इसका एक ये भी फायदा होगा कि फ्रॉड नहीं होंगे एटीएम के, और दूसरा ये भी फायदा होगा कि आप बीवी को कह सकते हैं कि मेरा अंगूठा लगने तो पैसे निकल मेरा कार्ड ले जाएंगी तो की करना ही। ऐसे कई खामद इतने ताबेदार भी हैं कि नाल अंगूठा भी वड के दे देना। इस हसीयत का अंदाजा वही शौहर लगा सकता है जो यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे आ जाता है और अपना क्रेडिट कार्ड बीवी के हवाले कर आता है। उसको जो 2-2 मिनट के बाद SMS अलर्ट मिलता है ना, 20,000, 10,000, वो किसी वक्त भी हार्ट फेलियर का बायस बन सकता है। किसको कह रही है? अपने कह रहा हूँ 20,000 साड़ी जनानी तो लैके भी जाएगी तो कदी आना मैसेज 150 75 रुपये 137 137 का दिन मां दी दाल दे जी। एटीएम मशीन है कि किराने की दुकान है? नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको सीधा उधर ही लिए चलते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मेरे अजीज सहाफियों, अस्सलाम वालेकुम। नहीं गिलानी साहब, ऐसी क्या बात है, आपके दोस्त भी हैं हम सारे। नहीं, मैंने गलत कहा है, सहाफी किसी का दोस्त नहीं होता। नहीं, ऐसी बात कर रहे हैं। जब ये नया नया आता है तो 2-3 साल में दोस्त बन जाता है। जब इसका एंट पक जाता है फिर ये किसी का दोस्त नहीं। तो चूंकि ये जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, मुझे मालूम है ये इनका एंट पका हुआ है। अच्छा गिलानी साहब, राइट अवे मौजू पे आते हैं। ये जो हुसैन हक्कानी साहब वाला इशू है, जिस पे आज आपने आज दोपहर को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ जरदारी साहब भी थे, हामिद सईद काज़मी साहब भी थे। जी हाँ, ये हम तीनों ने इकट्ठे इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमने सोचा कि चलो कुछ सहाफी मेरे मुंह से आ जाएंगे, कुछ जरदारी साहब के मुंह से आ जाएंगे, और कुछ हाजी हामिद सईद काज़मी साहब के मुंह से। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि ये हम तीनों के वजह से जो सहाफी आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तो मेरे मुंह से आए हैं। ये बाकी जरदारी साहब और हाजी साहब के मुंह वाले किधर है? इसीलिए वो दोनों उठ के चले गए। गिलानी साहब, मौजू की तरफ आते हैं ना। ये फरमाइए कि हुसैन हक्कानी साहब ने तो सारा मलबा आप पे डालने की कोशिश की है कि सारे वीजे जो अमेरिकी एजेंटों को जारी किए हैं वो आपके कहने पे हुए हैं, ये सही बात है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ये सिटिंग गलत की हुई है। क्यों? आपको चाहिए था कि आधे सहाफी इधर बिठाते और आधे इधर बिठाते। क्योंकि मैं अपनी तकरीर का आधा छट्टा दाएं तरफ लगाता हूँ और आधा बाएं तरफ। जिस तरह तायरा सैयद गाने का एक बोल दाएं तरफ कहती हैं और एक बाएं तरफ, हाय मेरी अंगूठियां, हाय मेरी अंगूठियां। तो मैं आज यही कहूंगा कि हाय मेरी कुर्सी, हाय मेरी कुर्सी। गिलानी साहब, खुदा ना खास्ता जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਉਸ दिन। ये खुदा न खास्ता भी इस बच्चे ने मुझसे डर के कहा, वरना ये इसकी दिली ख्वाहिश है। गिलानी साहब, मेरे सवाल का जवाब तो दे ना कि हुसैन हक्कानी साहब ने सारा मलबा तो आप पे डाल दिया है। देखे, ये जो हुसैन हक्कानी है, जिनका 4 साल की बकरी जैसा मुंह है, ये मुझ पे गलत मुद्दा डाल रहे हैं। आई वॉज प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं था जो उनको मैं बताता कि 4 वेल्डरों के वीजे चाहिए और 3 इलेक्ट्रिशियन थे और एक प्लम्बर भी भेज रहा हूँ। वो वहाँ पे वो एम्बेसडर थे। वीजा इशू करना ये उनका काम होता
है। लेकिन आपने कोई गाइडलाइन तो दी होगी ना, उनका कहना ये कि दबाव था, वो मान रहे हैं। अगे जी वो सारे काम मेरे कहने से करता है। आप उसे जानते नहीं है जुनैद भाई, वो कितना तेज आदमी है। वो तो इंग्लिश भी बहुत तेज बोलता है। और यू नो मैं तो सोच सोच के इंग्लिश बोलता हूँ। तो जितनी देर मैं अगला मिसरा बना रहा होता हूँ उतनी देर में वो अगला काम दिखा जाता है। तो ये सब उसने खुद किया है। हम तो सिर्फ इतना कहने के लिए आए हैं कि अगर आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो फिर शुरू से करनी चाहिए। ये भी इन्वेस्टिगेट करे कि असामा बिन लादन इधर कैसे आया था। अच्छा, बल्कि असामा बिन लादन को भी छोड़े, पहले ये मालूम करे कि यहाँ महमूद गजनवी कैसे आया था, और उसके अलावा वो मोहम्मद बिन कासिम कैसे आए। बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये इन्वेस्टिगेशन सिकंदर आजम से शुरू होनी चाहिए। सही। पहले सिकंदर आजम का पासपोर्ट चेक करे कि उसे वीजा किसने इशू किया था। सही। और फिर वो इधर चला आया और उसने आके किस हुकूमत की इजाजत से जेलम में नमक दरियाफ्त किया था। मैं समझता हूँ कि ये कौम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। अगर वो नमक दरियाफ्त ना करता तो कौम को ब्लड प्रेशर ना होता। ये जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ कौम को ब्लड प्रेशर हुआ है, इसका जिम्मेदार सिकंदर आजम है। अच्छा, इसका मतलब है कि आप इस मामले पे एक बाख्तियार कमीशन के क़याम के हक में हैं। देखे मेरे मोहतरम, आप ये मनहूस बात कर रहे हैं। बल्कि अगर आप ऐनक उतार दे तो आपका मुंह सैफुरमान जैसा है, जो बाद में मेरे पांव पड़ गया था। आपके पाँव नहीं, जरदारी साहब के पाँव पड़ा था। देखे जरदारी के पाँव में सबका पाँव। देखे इस इशू को रहने दें। इस वक्त आप हमसे इलेक्शन की बात करें। नहीं गिलानी साहब, इलेक्शन की बात फिर किसी दिन कर लेंगे। लेकिन चले ठीक है, फिर हम तीनों भी फिर किसी दिन आ जाएंगे। नहीं गिलानी साहब, जो खत आपने हक्कानी साहब को लिखा है, ये खत वाला मामला बहुत अहम है। देखे ये खत इन्होंने सिर्फ अपने कतरी खत को बचाने के लिए ये निकाला है। वो सियाने कहते हैं कि खत नु खत लड़े थे विस्क नु चढ़े। ये असल में ये नून लीग वाले जो है ये जान चुके हैं कि इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का कितना जोर है। अच्छा, तो इसलिए ये सिर्फ हमारी इलेक्शन कैंपेन को रोकने के लिए ये खत निकाल के ले आए हैं। हम सिर्फ इतना बता देना चाहते हैं कि इंशाल्लाह अगला वजीर आजम हमारा होगा। गिलानी साहब, आज आप जरदारी साहब के दाएं बाएं आप और काज़मी साहब बैठे थे ना, आप वजीर आजम बन सकते हैं ना वो वजीर आजम बन सकते हैं। तो मेरे जो 4 बेटे हैं वो मैंने वापडा में लाइनमैन लगवाने हैं। अच्छा, उन चारों बेटों में से कोई एक वजीर आजम बनेगा? नहीं, मैं तो चाहता हूं कि चारों ही लग जाए, क्योंकि चारों की शक्ल वजीर आजम से मिलती है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहाँ जाएंगे? हाँ, मुझे याद आया, वो भी तो है। चले ठीक है, उनको वजीर आजम लगवा ले। मैं अपने चारों बेटों को विड्रॉ करता हूँ। इंडिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं आपकी भेजी हुई तस्वीरों और वीडियोस के साथ। अच्छा भाईजान, मुहावरा तो आपने सुना होगा ना कि बच्चा बगल में ढंढोरा शहर में, लेकिन इस वीडियो को आप क्या कहेंगे? ये देखें जरा। बच्चा बगल में क्या, बच्चा दरमियान में ढंढोरा। अब बताओ बच्चा कहाँ है? कितने प्यार से निकला है बच्चा अंदर से। ये जो हम सड़क के ऊपर चलने के लिए अक्सर कलपते हैं कि सड़क पे चलते हुए ख्याल करना चाहिए। फैमिलीज जो है वो बच्चों को साथ लेके तो बिल्कुल बेध्याने लापरवाही से चल रही होती है। ये उसी का मजारा है ना। सड़क के ऊपर देखो ना, सज्जे खब्बे से वालिदैन ने पकड़ा हुआ बच्चे को, और पकड़ा भी उन्होंने मेरा हाल है जैकेट के बाजुओं को हुआ, बच्चे को नहीं पकड़ा हुआ। सर मेरे साथ सारी जिंदगी ऐसे होता रहा। क्यों जी? बाजू छोटे थे नजर। ओहो, ये तुम्हारी कोई बचपन की वीडियो तो नहीं? अच्छा, एक और वीडियो देखो जरा। शाबाश।
وہ خاتون کھانا کھا رہی ہے تو کتا اسے مار رہا ہے کہ مینو بھی دے. اس کو کہتی رہی ہوگی نا کتے کو کہ تین جمعے والے دن چکن شیچلی کھواواں گی, اور آج پکا لیے ہیں تو کتا بیچارہ دیکھو تڑف رہا ہے. وہ ٹیسٹی زیادہ بن گئی ہوگی. مجھے یہ ڈر ہے کہ غصے میں اس کی آنکھ میں سوٹی نہ مار دے جس سوٹی سے کھا رہی ہے. چائنیز ہے نا, نال بھی رہا تو نال کہہ بھی رہا ہے کہ جدو مینوں خریدن آئی سا وہ تو کہہ رہی سا میں یہ لینا بھاویں 10,000 دا ملے, تو مینوں روٹی نہیں دین دی. اچھا بھائی جان, ہمارے ایک معزز ویور نے تصویر بھیجی ہے اور کہا ہے کہ آپ بتائیں کہ اس تصویر میں کتنے بندر ہیں. بندر دکھاؤ. شاباش یار, یہ کو دو نہیں گنے جاندے, دوجی انگلوں پوچھتا پھر دے. پتہ ہے نا کون ہے؟ ہاں جی, جو نیا وزیر اعلیٰ بنایا وہ انڈیا میں, بی جے پی کا, ہاں جی یوگی آدتیہ ناتھ. جی جی جی. ویسے مجھے تو ایک ہی نظر آ رہا بندر. بہت اچھے. اور بھائی جی آگے اودا کو عکس نہیں پہن دیا, اگلا ہو بھی باندر ہی جے, تو اسی طرح پچھلا ہی سمجھن رہے ہو. اچھا یہ کر کیا رہا ہے ویسے؟ بھائی جی یہ خط لکھ کے دے رہا ہے باندر کو. نہیں میں پوچھ رہا ہوں بندر کیا کر رہا ہے؟ وہی بتا رہا ہوں کہ باندر خط لکھ کے دے رہا ہے. نہیں یار, نیچے والا بندر کیا کر رہا ہے؟ چھوٹا بندر ہے, وہ دھیان رکھ رہا کہ کدھر ابا جی غلط نہ لکھن. چھوٹا بندر دیکھ رہا ہے نال ہولی کہہ رہا ہے بڑی لکھائی گندی ہے. ہاں جی ہاں جی, بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار تیری مسلمانوں کے خلاف سوچ بھی گندی ہے اور تیری لہائی بھی گندی ہے. اچھا بچپن کی ایک یاد ذہن میں لاؤ کہ جب گیس کا غبارہ ہاتھ سے چھوٹ جاتا تھا تو کمرے کی چھت پہ جا لگتا تھا. ہاں جی, گیسی غبارہ. ہاں, اور پھر ہم وہ ڈنڈا لے کے بانس لے کے تو اس کا دھاگا لپیٹنے کی کوشش کرتے تھے نیچے لانے کے. ہاں, یا پھر سو جاتے تھے اک کے تو وہ راتی خود ہی ٹھوس ہو کے تو نیچے آ جاتے. ایک بندے نے دیکھو کیا طریقہ اختیار کیا ہے, اس نے بچہ پھینکا ہے. میرا خیال ہے ابے نے غصے سے بچے کو اچھالا ہے اوپر. اچھا ڈیا آپ ہی تو پھڑ بھی آپ ہی, میں کو تیرے ابے دا نوکر نہیں لگا. یار یہ باپ نے انرجی سیور چوری کرنے کے لیے بچے کو ٹرین تو نہیں کیا. یار تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ پیو پتر کے تیرے باغ چ کام تے نہیں کرتے, اس طرح امرود لا کے پیٹیاں پیک کرتے ہو. اچھا بھائی جان, ایک وقت تھا جب مائیں اپنے منہ کا نوالا بچوں کو دے دیا کرتی تھی. آج ایک یہ بھی وقت ہے. بہت اچھے. بچے سارے کام پہ لگائے ہوئے ہیں اور اماں جی باہر نظارہ لے رہی ہیں. وارے واہ, دیکھو یرا کھا پی کے انہیں کیا پتر میں بھی چاہ پی لوں تو ہی یرا صفائی کر. ویسے پا جنید وہ جو مائیں اپنے منہ کا نوالا بچوں کو دے دیتی تھی وہ ان پڑھ ہوتی تھی. بندہ پوچھے اماں جی تو انہوں تے شوگر ہوئی ہے, تسی اپنا جھوٹا بچے نو دے گے انہوں بھی شوگر کرانی ہے. اسی طرح ایک شوہر اپنی ڈائبٹک وائف سے کہتا ہے کہ جانو تمہارا سیلف کنٹرول زبردست ہے. بیوی کہتی ہے وہ کیسے؟ کہتی پورے جسم میں شوگر ہے تمہارے, مجال ہے ذرا سی بھی کبھی زبان پہ آنے دی ہو. آگے سے بیوی نے نہیں کہا کہ اڑیا تیرا بھی بلڈ پریشر بہت اچھا ہے, میں جنی مرضی بےزتی کر لواں پیراں لی جاندا سیر ہلوں نہیں چڑھدا. شو چ گیلس پا کے بیٹھا رہنا پتہ نہیں لگن دیندا. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. یار یہ آخری فقرہ کاٹ دے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ.